Good evening to everyone. Myself, Atul Garg, on the behalf of the section, welcomes you all for today's webinar, How to Become Full Stack Developer. Without wasting any time, I welcome Mr. Shivam Shukla, who is having 6+ years of experience in industry as well as in teaching. So, Shivam, So a very good evening to all. Hope you all are doing good in this pandemic. Hope you all are safe. So today's agenda is a full stack development course. So let me just introduce myself in few minutes. So myself, Shivam Shukla. I'm having around 6+ years of experience and training and development uh, uh, in college as well as the companies as well. So let's start. Uh, so our today's agenda is full stack development. So let's begin with our current situation. So in this pandemic, like everyone is working from home or you have to take your class online and all. Those who are in third or fourth year, let's first talk about the students who are in fourth year. So for fourth year students, it's a very typical situation just because due to this COVID, all industries are dumped down and you all are facing some recruitment issues and all. So just hope for your best and we are going to quickly start with this. So our first scenario is like what we are dreaming for. Like when we are in college or third year or fourth year student, if we are talking about like as your instance, मान लो कि हम अभी जस्ट थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ कॉलेज में हैं तो अभी हमारी ड्रीम क्या है व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जस्ट एक हमारा प्लेसमेंट हो और प्लेसमेंट भी एक अच्छे खासे पैकेज पे हो एक अच्छा पैकेज मिले एक एमएनसी किसी की अपनी चॉइस होगी कि मेरे को एमएनसी में जाना है समवन इज विलिंग टू गो इन गूगल समवन इज विलिंग टू गो इन एडोबे समवन इज विलिंग टू गो इन joining IBM and all and many other companies are there and so let's for your dream so in this pandemic everyone is hoping especially the IT industry is hoping well relief work from home job so that's what I just trying to show you let's what we are hoping like when we are in work from home just cool chill and a very freely job but to achieve this job you have to work very hard just because of this pandemic situation it will become more typical in front of you so now let's talk about what company expects us because everyone having a dream to work in an MNC company or work in a very high profile package. So what company expects with us? Company expects a talent, a person who can fulfill their all dreams. Let us suppose in your college around 100 to 200 students were sitting in one batch for job recruitment before this COVID pandemic, it might be possible if mass recruitment is occur, around 60 to 80 students from your batch got placement. But at that time, the current situation is company wants a very less amount of peoples because they want a person who can fulfill a task of two or three employees. So what's the company expectation is company is expecting a person who can do all three jobs as a UI developer, as a backend developer, or as a database developer. So company's expectation is far high in this scenario because they want to cut their cost spending on their employees. So let's talk about where we are currently standing. We're having a dream job. We are showing facing the company's recruitment process as well. Now where we are currently, I'm just going to show you a mini GIF of our recruitment process. So in this GIF, we are showing like a student is sitting in their college recruitment. Companies will came, peoples will change, but he haven't got job yet. If some person's got a job, just look at this around 6 to 7 people are there but when a job results came out of them only a one girl got placed so this is the current scenario just because we don't have a proper skill set to achieve that job so what to do how to achieve this proper recruitment how to fulfill the criteria of IT companies in this current situation
because a company expects a person who can fulfill all the three portions of their task. Because if someone is willing, like I'm going to become a UI developer, or I'm going to become a backend developer, or I'm going to become a database developer. So in this scenario, in this situation, company is searching for a person who can work in both three scenarios. So that's what a full stack development is. A full stack developer is a person who can work in all three fields, as a front end developer, or as a back end developer, or as a database developer. So let's talk about what is FSD. FSD is a full stack developer. A full stack developer are those who work with all full stack technologies. Let's begin with the scenario. uh, हम बात करते हैं a very fresher student when he or she joining a college, because as far as our AKTU syllabus or any other university syllabus, at very first year उस बच्चे को हम लोग क्या पढ़ाते हैं, C++. In second year we are switching them to some front end technologies as well. सेकेंड ईयर में उसे क्या पढ़ने को मिल जाता है, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript और डेटाबेस का भी टच उसे मिल जाता है. तो जब तक वो बंदा फर्स्ट सेकेंड ईयर से फॉलो अप करता करता थर्ड ईयर में एंटर करता है, तो थर्ड ईयर तक उसके ब्रेन में ना एक कोई फील्ड तो क्लियर विजिबल हो जाती है. बिकॉज अब तक आप ये देख चुके होते हो कि आप किस फील्ड में अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हो. कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके HTML का बहुत ही अच्छा लुक एंड फील डिजाइन कर पा रहा होगा, HTML उसे बहुत जल्दी कैच करी होगी. कोई C++ अच्छी कैच कर ले गया होगा, कोई C को अच्छा कैच करा होगा, कोई बंदा ऐसा होगा जो जावा में अच्छा कैच कर रहा होगा. तो इन थर्ड ईयर हम किसी ना किसी फील्ड में अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं. किसी को डेटाबेस अच्छा लगने लगा होगा, कोई टेस्टिंग के साथ भी जाना चाह रहा होगा. बट अब क्या हो गया है, अब कंपनी आपको एक पर्टिकुलर डोमेन के साथ आप कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो. जस्ट बिकॉज कंपनी आप एक ऐसा बंदा एक्सपेक्ट करना चाह रही है जो करंट नीड, जो फ्यूचर नीड आ रही है कंपनी के सामने. तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ये देख रही है कि अब 3 बंदों का खर्चा अगर हमारा एक ही बंदा फुलफिल कर रहा है, तो 3 बंदों को अलग अलग सैलरी देने की बजाय एक ही बंदे को उनके एवरेज की सैलरी दे देंगे उन तीनों बंदे की, तो भी उनका काम चल जाएगा. तो दैट्स व्हाट द फुल स्टैक डेवलपमेंट इज. सो what a full stack developer are those who work with the full stack technologies. So what are these full stack technologies? So basically, let's talk about what is stack. Stack is nothing, it's just a collection of technologies. अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को 7 to 8 टेक्नोलॉजी आती हैं, which means जो मेरा नॉलेज स्टैक है, जो मेरा स्किल सेट है, वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज का कलेक्शन है. सो स्टैक इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज. So basically we are 3 layers in a stack, as you all know, front end developer और a back end developer और a database developer. अगर हम बात करें एक प्रॉपर सिनेरियो की, अगर मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो जो भी आपको बैंक की वेबसाइट दिखेगी, बैंक की वेबसाइट का लुक एंड फील दिखेगा, वो आपका एक फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइन करता है. जो भी आपको उसकी फंक्शनैलिटीज मिलेंगी, जैसे आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आप इंटरेस्ट आपको अकाउंट में आ रहा है, ये सारा काम एक बैक एंड डेवलपर डिजाइन करेगा. और जहां भी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होगी, उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए एक अलग से डेटाबेसेस पे काम करने वाले बंदे होते हैं. दीज आर द डेटाबेस लेयर. So a full stack developer can work with any of these layers, but usually tend to specialize in one or more. So that's what a full stack developer is. Full stack का बंदा हर फील्ड के लिए, हर लेयर के लिए एक कैपेबल है. उसे चाहे आप फ्रंट एंड की डेवलपमेंट करा लीजिए, या बैक एंड का डेवलपमेंट करा लीजिए, या ही आप उससे डेटाबेस का डेवलपमेंट करा लीजिए. बिकॉज वो बंदा हर टेक्नोलॉजीज के साथ, हर फ्रेमवर्क के साथ एकदम हैंड्स ऑन फ्रीली स्पेशलाइज है, उसे कोई भी इशू नहीं है. Another way they specialize is to work with a suite of product that is based on a programming language like Java full stack developer. It's all stack are depend upon the particular person, like he or she are going with which one of a stack. We'll discuss it later. So is it any confusion in what is full stack developer? Everyone's clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir, it's clear. Okay. So let's move on to the slide. So let's talk about what are the software stack and which stack should I learn. Because जब भी आप सर्च करने जाओगे ना नेट पे कि हमें फुल स्टैक करना है, तो हम कैसे कैसे अपने पाथ को फॉलो अप करें, तो जब आप फुल स्टैक के लिए सर्च करते हो ना, तो अभी मार्केट में करेंटली बहुत सारे स्टैक्स अवेलेबल है, और वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देगा. बहुत सारे स्टैक के नाम आएंगे, बहुत सारी कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी जिनके थ्रू आप एक डेवलपमेंट कर सकते हो, या आप कुछ भी अच्छा बना सकते हो. सो बस ये वही है कि सॉफ्टवेयर स्टैक क्या होता है और कौन सा स्टैक आपको अपने
प्रोसीजर के हिसाब से कौन सा स्टैक आपको चूज करना है. सो सॉफ्टवेयर स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम विच आर यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक रिजल्ट. It includes an operating system and its application. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अगर मैं सॉफ्टवेयर स्टैक की बात करूं आपके स्मार्टफोन के, तो आपके स्मार्टफोन में क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कुछ एप्स हैं, कुछ ब्राउजर्स हैं और कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो बाय डिफॉल्ट उसमें इंस्टॉल्ड आई हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. तो ये पूरा कलेक्शन क्या हो गया, स्टैक हो गया. So the above list of skill set for a full stack engineer could be daunting. आप हमेशा ही डाउटफुल रहोगे कि आप कौन से स्टैक के साथ जाओ. अगर आपको फुल स्टैक ही करना है तो आप कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को चूज करो कि आपका एक प्रॉपर फुल स्टैक कलेक्ट होकर के आ जाए. सो यू नीड टू मास्टर सॉफ्टवेयर स्टैक बेस्ड ऑन योर कैरियर गोल, प्रोजेक्ट एंड कंपनी रिक्रूटमेंट. ये बहुत ही क्लियर है. आपको अपने स्टैक गोल्स, आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसी पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से ही स्टार्ट करनी पड़ेंगी, बिकॉज हर कंपनी किसी ना किसी अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है. अगर आपका गोल बिल्कुल क्लियर है कि आपको फेसबुक में ही जाना है तो आपको अलग स्टैक चूज करना है. अगर आपका गोल बिल्कुल ही क्लियर है कि मेरे को बस आईबीएम में ही जॉब करनी है और किसी कंपनी में जॉब ही नहीं करनी है, या मेरे को सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है और किसी कंपनी में जॉब ही नहीं करनी है, तो ऐसे बंदों के लिए भी डोमेन है. वो पर्टिकुलर सिर्फ उन्हीं गोल्स पे फोकस करेंगे, उसी पर्टिकुलर स्किल सेट के साथ रुके रहेंगे और उसमें ही अपनी अचीवमेंट फुलफिल करेंगे और कंपनी में रिक्रूटमेंट पाएंगे. Next one is, irrespective of stack you choose, you will find similarity in architecture and design pattern across different stack. एक और बहुत ही अच्छी बात है इस फुल स्टैक की, अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्टैक के साथ कैरी ऑन करना स्टार्ट करा बट लेटर ऑन आपको लगता है नहीं, अब मैं थोड़ा ये चाहता हूं कि मैं कंपनी स्पेसिफिक ना रहूं, मैं और भी कंपनीज में इंटरव्यू देना स्टार्ट करूं, तो एक स्टैक से दूसरे स्टैक के बीच में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं तो आप बहुत इजीली स्विच कर जाओगे. ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने आज कोई और स्टैक पढ़ना स्टार्ट करा है तो कल को आपका मन चेंज हो रहा है तो आप कहीं स्विच नहीं कर पा रहे हो. ऐसा कभी नहीं होगा. आप एक स्टैक से दूसरे स्टैक के बीच में हमेशा ही कुछ ना कुछ रिलेशन होगा. आप एक स्किल सेट से दूसरे स्किल सेट में जा पाओगे, थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा, बस दैट्स इट. बिकॉज हर डिजाइन पैटर्न और हर स्टैक में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो कि आपको एक फ्री पाथ प्रोवाइड करती है ताकि आप स्विच ऑन कर सकें और आगे मूव कर सकें. लेट्स लुक अप सम स्टैक्स इन दिस. फर्स्ट वन इज अ लैम्प स्टैक. We have around 3 to 4 stack. Here we are talking about LAMP stack. So first is LAMP. LAMP is widely used model for web server stacks. Its name LAMP is an acronym for 4 open source component. Basically हर letter का अपना एक programming language है. Like for as a L stands for a Linux. As an open source operating system, everyone knows about it. आप openly download कर सकते हो इसे. A stands for Apache, widely used web server software, free of cost. आप नेट से इसे भी डाउनलोड कर सकते हो. M stands for MySQL and P for PHP. These are the 4 skill set, 4 technologies which comes under the LAMP stack. Basically, the LAMP stack many popular websites are working upon the LAMP stack, but Facebook is one of your dream company which work on a LAMP stack. So if anyone is from us willing to give an interview on Facebook, so he or she must have to become a champ in LAMP stack. So let's move up on MERN stack. MERN is a collection of JavaScript based technologies. Basically MERN is totally depend upon JavaScript. अभी तक क्या है, आपने जो भी सेकेंड थर्ड ईयर तक अपने कॉलेज में जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, ये जावास्क्रिप्ट उससे फार पार है. बिकॉज अभी तक आप जावास्क्रिप्ट नॉर्मल यूज करके छोड़ देते हो, बट जब हम अपर लेवल पे जाते हैं ना तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं और जावास्क्रिप्ट के बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं. So in MERN, M stands for MongoDB, popular NoSQL database. MongoDB एक ऐसा डेटाबेस है जो करंट नीड में और फ्यूचर में मार्केट में एक अच्छी इसकी बूम है. सो MySQL, DB2 बहुत पीछे छूट गए इस MongoDB के साथ. नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेस, लाइट एंड पोर्टेबल वेब प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है. R for React, a JavaScript library for building user interfaces, and N stands for Node.js, a server-side JavaScript runtime. So basically, in one stack, it is a collection of 4: MongoDB, Express, React, and a Node.js. All these, this one stack is also in huge demand because it is totally based on a web development application. Like as we talked for LAMP, LAMP is also for a web develop application, but LAMP was picked by very few websites just because it is basically developed on a
Linux operating system. So as we are talking about MERN stack, MERN is basically on Windows or Linux, and you can develop it anywhere. There is no restriction of operating system, so that's why it is in huge demand and for a web application. Let's look about mean stack. So mean stack application development is witnessing a growing trend in usage. Mean is an abbreviation of a MongoDB, same NoSQL database. E for Express, ease to use and portable framework. A for Angular, and N for Node.js. The major difference, main difference between mean stack and MERN stack is in mean stack we are developing a front end in Angular programming language. सो हम बेसिकली मीन स्टैक के अंदर एंगुलर यूज कर रहे हैं, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट MERN स्टैक हम यहाँ पे रिएक्ट यूज करते हैं। रिएक्ट और एंगुलर दोनों ही बहुत ही अच्छे मार्केट में अभी इनकी पकड़ है, बहुत ही हाई डिमांड भी है इनकी मार्केट में। ये दोनों ही फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है और इन दोनों ही फ्रेमवर्क की अच्छी खासी कॉस्टिंग है। अगर आप ऑन एन एवरेज इनकी सैलरी चेक करो एक एंगुलर डेवलपर की और रिएक्ट डेवलपर की, तो नियरली सेम है। बट इन इंडिया एंगुलर इज इन हाई डिमांड, अगर आप इंडिया से बाहर स्विच करोगे तो रिएक्ट की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। सो दैट्स व्हाट द थ्री स्टैक इन फ्रंट ऑफ अस। सो लेट्स लुक फ्रॉम द बिगिनिंग। सो फुल स्टैक नथिंग जस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्टैक। अभी हमने तीन स्टैक देखे हैं, लैम्प स्टैक, MERN स्टैक और मीन स्टैक। बेसिकली इन्हीं तीन स्टैक के आसपास हमारा पूरा डेवलपमेंट, पूरा फुल स्टैक घूमता रहता है। सो बेसिकली फुल स्टैक के अंदर हमारी थ्री लेयर्स हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड अ डेटाबेस। देन एक ऐसा कभी भी स्पेशलाइज नहीं है कि अगर आप किसी एक लेयर पे काम कर रहे हो तो आप उस पे ही करोगे। अगर आप फुल स्टैक का बंदा है तो वो तीनों लेयर के साथ हैंड्स ऑन है, उसे कोई इशू नहीं है, वो कभी भी किसी भी लेयर पे डेवलपमेंट करने के लिए कैपेबल है। आपको स्टैक अपनी कंपनी नीड, आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज करने होते हैं। अगर कोई बंदा लाइनेक्स में बहुत ही अच्छा है तो वो लैम्प स्टैक के साथ जा सकता है। अगर आप विंडोज पे काम करना चाहते हो, आप करंट नीड को देखना चाहते हो, अगर आप बिल्कुल ही फ्री हो कि मैं किसी भी कंपनी में जाने को रेडी हूं, तब आप MERN स्टैक चूज कर सकते हो, मीन स्टैक चूज कर सकते हो। ये सारे स्टैक पर्सन की अपनी खुद की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है और उसके अपने गोल्स पे डिपेंड करता है कि उसे किस स्टैक के साथ जाना है और कैसा फुल स्टैक डेवलपर एट द एंड ऑफ द डे उसे अपने आप को बना करके रखना है। सो अब बात करते हैं हम लोग फुल स्टैक डेवलपर की। जो भी आपके सामने फुल स्टैक का बर्गर दिख रहा है, बेसिकली अगर मैं इस बर्गर को थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये जो बर्गर की सबसे अपर लेयर है ना, जो आपको सबसे पहले दिखती है सर्व होते वक्त, वो आपका फ्रंट एंड है। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर बना के तैयार करोगे और एक एंड यूजर के सामने जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रंट एंड ही दिखेगा उसे। बिकॉज अगर कोई लेमैन है, कोई ऐसा बंदा है जिसे टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए सब कुछ नया ही है। आप उसे जैसा लुक एंड फील बना के दोगे, बस वो उसी लुक एंड फील के थ्रू आपको जज करेगा कि हाँ उसका सॉफ्टवेयर कैसा है, कैसा दिख रहा है एंड सो अगर मैं सबसे ऊपर लेयर की बात करूं तो यहाँ पे अभी तक, जब तक आप कॉलेज में अभी आपने जितना पढ़ा है थर्ड फोर्थ ईयर तक, आप इनमें से 4-5 टेक्नोलॉजी से अभी तक आप अवेयर हो। जैसे कि आपने एजेक्स के बारे में सुना होगा, आपने CSS के बारे में सुना होगा, बट शायद आपने CSS का पुराना वर्जन सुना होगा। HTML भी शायद आपने अभी तक HTML3 एंड ऑल करा होगा, और आप शायद जावास्क्रिप्ट से अवेयर हो। बट अब जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है वो हम HTML, जावास्क्रिप्ट इन सब से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं और हमने इनका कलेक्शन बना के ना मेजर 2 फ्रेमवर्क बना लिए। एक फ्रेमवर्क हमारा React.js है और दूसरा फ्रेमवर्क हमारा AngularJS है। सो बेसिकली एंगुलर और रिएक्ट कुछ ऐसे अलग नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इन सारी टेक्नोलॉजीज का कलेक्शन हम इन दोनों के अंदर यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाट द अपर लेयर, फ्रंट लेयर जो हमारी है फुल स्टैक की। अगर मैं एक फ्रंट एंड की बात करूं तो बर्गर का सबसे अपर बन हमारा फ्रंट एंड लेयर है। सो लेट्स टॉक अबाउट द दिस ब्राउनिश पार्ट जो कि आपकी आलू टिक्की होती है। सो बेसिकली यहाँ पे पूरा बैकएंड है। ये आपका पूरा बैकएंड, जो भी आप डिजाइन करोगे, जिस भी टेक्नोलॉजीज पे आप डिजाइन करना चाहते हो, आपका बैकएंड और आपका डेटाबेस। अगर मैं जावा पे भी डिजाइन करना चाह रहा हूँ अपना बैकएंड, या फिर मैं पाइथन पे डिजाइन करना चाह रहा हूँ, .NET, Node.js, आप जिसमें भी अपना बैकएंड लिखना चाह रहे हो और आप अपनी कनेक्टिविटी कैसे करके दे रहे हो, सो ये जो भी आपको येलोइश पोर्शन दिख रहा है, ये सब आपकी चीज है। आप बर्गर और इस आपकी लेयर को कैसे सम अप कर रहे हो, कैसे ज्वाइन कर रहे हो। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस लेयर। एंड द बिलो वन, सबसे लेटर पार्ट जो भी आपके बन का है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपका क्लाउड, जिस पे भी आप उसे रन कराना चाह रहे हो। आप गूगल पे करा लो, आप एंड्रॉइड पे करा लो, आप विंडोज पे करा लो, आप लिनक्स पे करा लो, आप क्लाउड पे करा लो, आप IBM इंटीग्रेशन पे करा लो। सो बेसिकली ये पूरा एक कलेक्शन है, एक स्किल सेट है
एक फुल स्टैक डेवलपर का जो कि उसे आना चाहिए, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करा गया है। सो लेट्स हैव अ लुक सम फुल स्टैक डेवलपमेंट लेयर्स जो कि अभी तक हम बात कर रहे हैं तब से। सो अगर हम बात करें सिर्फ फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड पे हमारे पास है HTML, CSS3, JavaScript, AngularJS and React.js and many more. Let's talk about backend. सो बैकएंड में हमारे पास रूबी में प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, आप जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप PHP पे कर सकते हो, आप .NET पे कर सकते हो, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जिस पे आप डिसाइड करेंगे आप उस पे अपने बैकएंड का कोडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज डेटाबेस। इन डेटाबेस लाइक NoSQL, MongoDB, CouchDB, MySQL, बट इन सब में सबसे अच्छा जो चल रहा है अभी करेंटली वो है MongoDB। हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अभी MongoDB है। अगर आप चाहते हो, जस्ट अभी बहुत क्लियर सिनेरियो पे डिस्कस करते हैं, बिकॉज जो भी अभी फोर्थ ईयर में है उनके सामने तो प्रॉब्लम्स हैं ही इस ईयर, बिकॉज उनका रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, जो भी करंट उनके एम्प्लॉयज हैं उन्हें ले ऑफ कर रही है, तो नए बंदों को रिक्रूट क्या ही करेगी। बट फिर भी लेटर ऑन नेक्स्ट ईयर और आफ्टर 1 और 2 ईयर जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो अभी तक अगर वो 100 में से 10 बंदे रिक्रूट कर रही थी ना, तो अब जब आप जाओगे तो शायद हो सकता है 100 में से 2 या 3 ही बंदे रिक्रूट हो, और वो 2-3 बंदे भी ऐसे होंगे ना जिनका स्किल सेट प्रॉपर अपग्रेडेड होगा। मतलब वो प्रॉपर कंपनी की जो अभी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है ना, आप उसके साथ मेल खा रहे होगे, मतलब आप वहां तक अचीव कर ले गए होगे। अगर उनके कंपनी में काम हो रहा है एंगुलर जेएस पे, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो मैं PHP से कोडिंग कर लूंगा और मेरा फ्रंट एंड भी वहीं लिख जाएगा, फिर वो आपको रिक्रूट नहीं करेगा। अगर वो एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपको वो एंगुलर जेएस और रिएक्ट जेएस आना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको MongoDB डेटाबेस आना चाहिए और आप सोच रहे हो कि आप MySQL और Oracle में चैंप हो, तो हो सकता है कि आप बहुत पीछे छूट जाओगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। The next one is version control. Version control is basically those who are working in an organization. Like अगर आप काम एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर 10 बंदे काम, एक ही फाइल मैंने बना रखी है, सपोज मैंने एक फाइल बना रखी है XYZ, और उस XYZ में 10 बंदे कोड कर रहे हैं अलग अलग अपने सिस्टम पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल अभी लेटेस्ट कंडीशन में है? तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए एक वेबसाइट है github.com, GitHub, Grant, XDebug, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जो मेनली कंपनी या मार्केट में यूज हो रही है वो है GitHub। सो दैट्स व्हाट अ वर्जन कंट्रोल इज। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बेसिकली ये इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं, जैसे अगर किसी को कितना टास्क प्रोवाइड करा गया है उसके मैनेजर के थ्रू, और वो कितना काम कर चुका है या कितना काम बचा हुआ है, ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के थ्रू ट्रैक होकर के आती हैं। सो दैट्स व्हाट अ प्रॉपर स्किल सेट ऑफ अ फुल स्टैक डेवलपर। सो लेट्स मूव ऑन। यहां तक तो हमारी बात हो गई है कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर के क्या क्या स्टैक हैं, और हम उसके अंदर कौन कौन से स्टैक चूज कर सकते हैं, और फुल स्टैक की लेयर्स क्या हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस लेयर। अब बात आती है आखिर हम फुल स्टैक ही क्यों करें? और भी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। कोई कहेगा कि हम तो पाइथन कर लेंगे, कोई कहेगा हम डेटाबेस डिजाइनिंग में चले जाएंगे, किसी को लगेगा हम AI में मूव कर जाएंगे, या फिर किसी को लगेगा हम डेटा साइंस में स्विच कर जाएंगे। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप इन सब स्कोप के साथ जाओगे ना, तो माइट बी पॉसिबल कि 90% बंदों को बीइंग अ फ्रेशर इन सब फ्रेमवर्क में जॉब मिलना बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, बिकॉज फ्रेशर लेवल पे अगर आप इनकी जॉब ढूंढो तो शायद ना के बराबर है। और अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर बन के बैठा रहूंगा और मेरे को एक अच्छी कंपनी रिक्रूट कर लेगी, तो ये भी आज की डेट में बहुत ही नेग्लिजिबल सिनेरियो हो जाएगा, बिकॉज अब कोई भी MNC या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज और हाई रेटेड कंपनीज ये कभी नहीं चाह रही कि वो एक सिंगल फ्रेमवर्क वाले बंदे को उठाए, एक ऐसे बंदे को उठाए जो सिंगल डोमेन पे काम करना चाहता हो। सो दैट्स व्हाई द फुल स्टैक कम्स इनटू द पिक्चर। तभी ये सिनेरियो जनरेट हुआ कि हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिजनेस पे स्टार्ट हुआ कि एक ही बंदे को अगर सब कुछ आता हो तो सबसे पहले उस बंदे को पिक करो, बिकॉज उसके ऊपर आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और वो इजिली ग्रैब कर लेगा किसी भी फ्रेमवर्क को। सो दैट्स व्हाट द फुल स्टैक इज, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू अ फुल स्टैक। सो फुल स्टैक डेवलपर इज अ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट who can work on both in front end and a back end of any application. So a full stack developer helps you to keep every part of the system running smoothly, and for a FSD is a master of stacks and comfortable with the reds. जो कि मैं आपको बिगनिंग से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको सारे स्टैक्स ही सीखने हैं, आप किसी भी एक स्टैक पे अपनी कमांड बना लो
उसके बाद आप किसी भी स्टैक पे स्विच करने में इजी रहोगे, बिकॉज हर स्टैक के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ही। अगर आप किसी भी एक स्टैक पे बहुत ही अच्छी कमांड है आपकी, बहुत ही आप बिल्कुल मास्टरली काम कर रहे हो किसी के स्टैक पे, तो अगर आपको किसी और स्टैक पे कल को स्विच करना पड़ेगा तो भी कोई इशू नहीं। In fact, as a full stack engineer gives you a 360-degree view into a different components that makes your software product successful. Due to this awareness, a full stack developer can rapidly create a prototype compared to a backend or a front-end engineer. That's what the main point. अगर कोई फुल स्टैक डेवलपर है और वो तीनों फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है, विच मीन्स उसके पास हर डोमेन की नॉलेज है और वो जब चाहे तब किसी भी बंदे को रिप्लेस कर सकता है। अगर एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, एक कंपनी 3 बंदों से भी काम करा रही है और तीनों बंदों को 20,000 पे कर रही है, तो उस कंपनी का भी 60,000 रुपीज पे हो रहा है। अगर उसी 60,000 का रिप्लेसमेंट करके एक ऐसा बंदा ले आते हैं, फ्रेशर, एक बिगनिंग कॉलेज से उठा लेते हैं एक फ्रेशर बंदा जिसे फुल स्टैक आता है, जो तीनों बंदों का काम करके दे देगा, तो अपार्ट फ्रॉम गिविंग 20 to 3 peoples, they are going to give 40 or 50 to only 1%, so that in this case वो अपना भी 10 से 15,000 रुपए बचा रहे हैं और उस फ्रेशर को भी बहुत ही अच्छे पैकेज पे ज्वाइनिंग मिल रही है। सो ये है फुल स्टैक का एक मेजर पॉइंट। अब फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी हमेशा ही किसी पर्टिकुलर डोमेन के बंदे की सैलरी से हमेशा ही ज्यादा होगी, जस्ट बिकॉज आप अकेले 3 बंदों का काम करोगे और वो तीनों बंदे अपना अलग अलग काम करके सैलरी ले रहे थे। तो ये है फुल स्टैक का एक मेजर पॉइंट। अगर आप इसे फाइनेंस व्यू से देखो, तो अगर आप इसे पैसों के पर्सपेक्टिव से देखोगे तब भी फुल स्टैक आपको हमेशा ही आगे रखेगा। नेक्स्ट वन इज द व्यू पॉइंट ऑफ अ प्रोडक्ट डिजाइन एंड आर्किटेक्चर आर वेरी पॉइंटेड एंड हेल्पफुल। अगर एक ही बंदा अपने दिमाग में पूरी पिक्चर क्रिएट करके बैठा है कि उसे सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, तो हमेशा ही सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा तैयार होगा, बिकॉज उसके दिमाग में जैसा फ्रंट एंड का पिक्चर है वो उसी हिसाब से डेटाबेस डिजाइन कर रहा है, वो उसी हिसाब से अपना बैक एंड भी लिख रहा है। अगर यही पूरी टीम में काम हो रहा है, फ्रंट एंड के बंदे अलग हैं, बैक एंड के बंदे अलग हैं, डेटाबेस के बंदे अलग हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि हर रोज ही रिक्वायरमेंट चेंज होगी। फ्रंट एंड का बंदा कुछ और सोच के अपना डेवलपमेंट कर रहा है, बैक एंड वाला कुछ और सोच के अपनी क्रिएटिविटी कर रहा है। तो इन सारे केस में डिजाइनिंग में बहुत क्लैश होते हैं, बहुत सारे क्लैश आर्किटेक्चर के साथ भी होते हैं। बट फॉर अ फुल स्टैक इट इज टू इजी, बिकॉज एक सिंगल बंदे के दिमाग में पूरी क्लियर पिक्चर है, उसके वी पॉइंट बिल्कुल क्लियर है किसी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग को लेकर के, और वो सारा काम खुद ही हैंडल कर लेगा। दीज आर फ्यू पर्क्स फॉर एफएसडी। अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखें और एक एफएसडी एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखें, तो एक एफएसडी वाला बंदा अपनी कंपनी में अपनी इमेज कैसी देखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एफएसडी रिसोर्स हो तो आप कंपनी में बहुत ही कम क्वांटिटी में एफएसडी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, बिकॉज जब 3 बंदों को आप रिप्लेस कर रहे होगे तो जाहिर सी बात है आप स्ट्रेंथ कम कर दोगे कंपनी की, और जब आप बहुत ही कम बंदों में से होगे ना, तो शायद आपकी डिमांड हमेशा ही हाई रहेगी, बिकॉज जब भीड़ लग जाती है तो आपकी डिमांड कम हो जाती है, और जब पहले से ही रिसोर्सेज कम है तो उन रिसोर्सेज की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। सेकेंड वन इज कंपनीज प्रेफर जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट। ऑलवेज कंपनी स्पेशलिस्ट बंदे को ही प्रेफर करेगी। अगर आप इंटरव्यू में 5 बंदे को बिठा दो और 3 बंदे सिंगल डोमेन वाले हैं और एक बंदा प्रॉपर एफएसडी वाला है, तो जाहिर सी बात है एफएसडी वाले को हमेशा ही उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, बिकॉज आप तीनों डोमेन में स्पेशलिस्ट हो। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन। क्वालिटी तो हमेशा ही अच्छी बनेगी, बिकॉज एक ही बंदे के दिमाग में सब कुछ बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, तो क्वालिटी तो अपने आप अच्छी आएगी, क्योंकि कुछ भी मैसअप नहीं होने वाला है और टीम्स मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपको हमेशा ही प्रोवाइड करी जाएगी, जस्ट बिकॉज आप कंपनी के एक ऐसे एसेट हो जो किसी भी टास्क में या किसी भी प्रोजेक्ट में इजीली स्विच करे जा सकते हो। नेक्स्ट वन इज द टॉप नॉच कंपनीज हायर देम। अगर आप आज की डेट में करंट सिनेरियो की बात करोगे कंपनीज में, तो जितनी भी टॉप नॉच कंपनीज हैं, जितनी भी एमएनसीज हैं, गूगल, आईबीएम, फेसबुक और बाईजूस, और कितनी भी कंपनीज की बात कर लो, जितनी भी टॉप नॉच कंपनीज हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी एफएसडी हायर करना ही है। And the next one is the freelance opportunities. Many of you are hearing about the freelancers. फ्रीलांसिंग भी आपको इजीली अवेलेबल है एफएसडी पे, बिकॉज फ्रीलांसिंग वो बंदे करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जो कॉलेज लेवल पे फ्रीलांसिंग करते हैं, दोज हु आर वेरी शार्प इन देयर कोडिंग और पोर्शन, सो दे विल स्टार्ट फ्रॉम डूइंग फ्रीलांसिंग फ्रॉम देयर कॉलेज लेवल एज वेल। सो जैसे कोई 4th ईयर का बंदा फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट उठा लेता है, अगर वो एफएसडी में बहुत चैंप है तो उसे फ्रीलांसिंग मिलना भी बहुत ईजी है, बिकॉज अगर मेरे को सिर्फ बैक एंड आता है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट उठा लूं, आपने फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट ले लिया मार्केट से, आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है। अब आप तो सिर्फ बैक एंड बना के बैठ जाओगे, फ्रंट एंड का काम, डेटाबेस का काम, उसके लिए आप अलग से बंदे ढूंढोगे। तो अगर आप एफएसडी हो तो आप इन सारी हेडेक से भी ओवरकम कर जाते हो। ये सारे पर्क्स भी आपको एफएसडी के अंदर मिलते हैं।
आपको हमेशा ही कंपनी में एक अलग इमेज मिलेगी, आपको हमेशा ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, पैकेज तो आपका हमेशा ही अपर रहेगा इन सब चीजों से, और जितनी भी टॉप नॉच कंपनीज हैं, जितनी भी एमएनसीज हैं, इन सब में आपके रास्ते आपके लिए हमेशा ही खुले हुए हैं. सो लेट्स कम अबाउट द कंक्लूजन वेयर वी आर स्टैंडिंग, और अगली मार्केट फ्यूचर की नीड क्या होगी. सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड हाउ एक्सीलेंट द प्रोस्पेक्ट्स आर फुल स्टैक डेवलपर. अभी तक जो भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया है कि फुल स्टैक डेवलपर तीनों फ्रेमवर्क में काम कर रहा है, कंपनीज में भी उसकी अच्छी इमेज है. और रही बात, अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से छोड़ें, एक बंदे की पर्सनल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें, तो यस, आप इन फ्यूचर कभी भी आप किसी भी डोमेन में स्विच कर सकते हो, बिकॉज आप हर टास्क के साथ, हर फ्रेमवर्क के साथ, हर प्रोजेक्ट की लेयर के साथ पहले से ही अवेयर हो. कल को आप जाना चाहते हो डेटा साइंस में, तो आप हमेशा जा सकते हो, बिकॉज आप बैकएंड पे चैंप रह चुके हो, आपको डेटाबेस का भी सारा नॉलेज है. तो कल को आप डेटा साइंस की तरफ भी मूव कर सकते हो. अगर आप एआई की साइड जाना चाहते हो, तो आप वहां पे भी आपके लिए रास्ते खुले हैं इन फ्यूचर आफ्टर 5 to 10 years ऑफ डेवलपमेंट. बिकॉज अभी तक आप जितने भी कोडिंग सिनेरियोस कर रहे हो, आप आर्किटेक्चर भी खुद ही डिजाइन कर रहे हो, तो आपको एआई में सारी फंक्शनैलिटीज पहले से आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बनती आ रही है, तो आप उन सबको एआई में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज क्लाउड. जब आप पूरी डेवलपमेंट खुद ही कर रहे हो, तो आपको हर चीज पता है, कहाँ से चीज कैसे मूव हो रही है, क्या कोडिंग किस पार्ट पे हिट करेगी, तो आप कल को अपनी पूरी एप्लीकेशन को क्लाउड पे भी ले जाके मूव कर सकते हो. एंड मैनी मोर. फुल स्टैक के लिए 360 डिग्री व्यूज खुले हुए हैं, वो जहां चाहे वहां स्विच कर सकता है. So as companies are relying more and more on technologies and the web, the demand for such experts are increasing. So the full stack developer future score is undoubtedly bright, and for everyone it's a perfect time for anyone to learn this skill. यहाँ तक तो हमारी बात रही पूरी जर्नी, पूरे पाथ की, पूरे बिगनिंग से. एक बार मैं आपको एक दोबारा से एक्सपेक्ट करा के चलता हूँ. सो हमने स्टार्ट यहाँ से करा था कि अभी हमारी ड्रीम क्या है. हमारी जो ये ड्रीम है ना, कि हाँ हम एक ऐसी फुल स्टैक मल्टीनेशनल कंपनी में हमें जॉब मिले, एक आराम की जिंदगी, जो कि आपने देखा होगा इस कोविड पैंडेमिक में जितने आईटी एम्प्लॉयज है ना, वो बहुत चिल है अपने घर पे बैठ के, रादर देन वो एम्प्लॉयज जिन्हें ऑफिस जाना पड़ रहा है. सारे आईटी एम्प्लॉयज भी चिल नहीं है, बिकॉज जो भी आप स्टार्टअप में अगर काम कर रहे हो, तो जब से अनलॉक स्टार्ट हुआ है ना, तब से शायद स्टार्टअप वालों को कंपनियां बुलाने लग गई हैं, और बहुत सारी कंपनियां बुलाने लग गई हैं. बट अगर आपको एक चिल रिलैक्स जॉब चाहिए ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा तो बाकियों की भीड़ से अलग होना पड़ेगा. अगर आप इतना सुकून की जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको बाकी सारी भीड़ से अलग होना पड़ेगा. बिकॉज जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी, जो मैंने वेरी बिगनिंग में क्लियर करी थी, कि एक ही बंदा तीनों काम कर रहा हो, वो फ्रंट एंड का भी काम देख रहा हो, वो बैक एंड का भी काम देख रहा हो, और वो डेटाबेस का भी काम देख रहा हो. सो यहाँ तक का हमारा सिनेरियो है. और फिर मैंने आपको ये डिस्कस कराया था कि आपकी कॉलेज रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, कंपनीज आ रही हैं, जा रही हैं, और शायद इतनी भीड़ में कोई एक ही बंदा हो रहा है सेलेक्ट, तो जस्ट इसीलिए कि वो बंदा इन पूरे जितने रेस्ट 6 पीपल्स हैं, इन सब में सबसे अलग है, बिकॉज उसके साथ जाहिर सी बात है, उसके सामने सबसे ज्यादा स्किल सेट है इन सबसे. दैट्स व्हाई ही गॉट हायर्ड इन दैट कंपनी. सो दैट्स व्हाट द एफएसडी इज, कि आप तीनों फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो, आपने अपने स्टैक चूज करे, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड सो ऑन. सो दैट्स व्हाट द कंक्लूजन. आपके लिए हमेशा ही स्कोप खुले हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ही फार है, बहुत ही ब्राइट स्कोप है आपका, और एकदम परफेक्ट टाइम है स्किल स्टार्ट करने के लिए. सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. अगर हम एफएसडी स्टार्ट कराते हैं आपको, तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आपके साथ. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो अगर हमने आपको एफएसडी स्टार्ट कराते हैं, तो हमारे पास जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जो हम कवर करेंगे आपके लिए, वो है HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, टाइपस्क्रिप्ट एंड एंगुलर 8. आप लोग थोड़ा बहुत अवेयर होंगे पहले से HTML और CSS बूटस्ट्रैप से, बिकॉज कॉलेज लेवल पे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बिकॉज वो थोड़ा बहुत सफिशिएंट नहीं है इन एंगुलर और रिएक्ट पे काम करने के लिए. हमें एकदम लेटेस्ट वर्जन पे पढ़ना है, इसीलिए हम HTML5 और CSS3 पढ़ेंगे. बूटस्ट्रैप की बहुत सारे वर्जन हैं, और इसको भी हमें एकदम लेटेस्ट वर्जन से पढ़ना है. जावास्क्रिप्ट, वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नहीं जो आपने कॉलेज लेवल पे पढ़ी है, एक नॉर्मल घड़ी बना ली आपने, स्टॉप वॉच बना ली जावास्क्रिप्ट से, यही सारे कोडिंग है हमारे कॉलेज सिलेबस में. सो नेक्स्ट वन इज jQuery, इट्स अ जावा क्वेरी, ये भी इनहैंस वर्जन है इसी में. नेक्स्ट वन इज टाइपस्क्रिप्ट. टाइपस्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट का ही इनहैंस वर्जन है. जावास्क्रिप्ट में कोई भी टाइप कास्टिंग नहीं है, बट टाइपस्क्रिप्ट आपको अलाउ करती है. और ऊपर के जितने भी ये लेवल्स हैं, जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करी हमने 6, ये सारी 6 लैंग्वेजेस इंक्लूड होती हैं एंगुलर 8 के अंदर, जो कि एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड डेवलपर का, जिसके अंदर हम लोग यूज करेंगे. एंगुलर के भी बहुत सारे वर्जन है, सबसे लेटेस्ट वर्जन एंगुलर 8 है, जिसपे हम लोग काम करेंगे. Second one, backend technologies. So in backend, we are going to cover core Java plus advanced Java and every framework of advanced Java, but we are majorly focusing on Spring, because Spring Boot
करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट है। स्प्रिंग बूट बहुत ही अभी फेवर में है, मार्केट में बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग है और आने वाले फ्यूचर में भी स्प्रिंग बूट का बहुत स्कोप है। सो कोर जावा, एडवांस जावा प्लस स्प्रिंग। नेक्स्ट वन इज JPA, योर डेटाबेस कनेक्टिविटी इन स्प्रिंग बूट। अदर वन इज Zool गेटवे। Zool गेटवे इज वन ऑफ द मेजर फीचर। अगर आप किसी पेमेंट गेटवे एंड ऑल की बात करो तो Zool से वो काम इजिली हो जाता है। नेक्स्ट वन इज यूरेका सर्वर। यूरेका सर्वर मार्केट में आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। यूरेका और Zool ये दोनों नेटफ्लिक्स के प्रोडक्ट हैं। जो नेटफ्लिक्स आप लोग देखते हो ना, वो नेटफ्लिक्स सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं है, नेटफ्लिक्स डेवलपमेंट में भी बहुत आगे है। नेटफ्लिक्स कंपनी में भी फुल स्टैक डेवलपर की रिक्रूटमेंट होती है और उनका ही पैकेज बहुत ही हाई है। So Zool and Eureka both are the product of Netflix. Other one is Spring Security. All the securities which are given in backend development. So Spring Securities भी provide कर रहा है और हमें ये सारा डेवलपमेंट, ये वो स्किल सेट है जो हम एक बैकएंड डेवलपर के लिए पढ़ते हैं। ये सारा बैकएंड डेवलपर भी एक दूसरे से रिलेटेड है। कोर जावा के बिना आप एडवांस जावा स्टार्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर आप सोचो कि मैं डायरेक्ट एडवांस जावा कर लूं तो बिहाइंड द सीन्स एडवांस जावा में पूरा का पूरा कोर जावा ही चल रहा है। एडवांस जावा के अंदर भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स हैं। लाइक अगर हम बात करें तो उसमें सर्वलेट है, उसमें हाइबरनेट है, उसमें JSP है एंड मैनी मोर। बट अब क्या है, अब ये सब चीजें ऑब्सलीट होती जा रही हैं और हम स्प्रिंग की तरफ स्विच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी काम चल नहीं रहा इन पे। अगर आप IRCTC की बात करो, आप PNB वेबसाइट की बात करो, तो ये दोनों वेबसाइट JSP पे लिखी हुई हैं। पहले सर्वलेट पे लिखी थी, उसे अपग्रेड करके अब हम लोग JSP पे लाए हैं और अब JSP से अपग्रेड करके स्प्रिंग बूट पे लाने का काम चल रहा है। तो धीरे धीरे करके वहां भी आ जाएगा। आपने इनहेंसमेंट देखा होगा IRCTC की वेबसाइट में। बहुत पहले अगर जस्ट 5-7 साल पीछे की बात करें तो शायद जब आप IRCTC की साइट पे बुकिंग करते थे तो कभी टिकट कंफर्म हो रही है, कभी नहीं हो रही है। मोस्टली टाइम्स तो साइट हैंग हो जाया करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन दैट वेबसाइट। सो ये जितनी भी लोड बैलेंसिंग थी ना, ये सारा काम स्प्रिंग बूट ने बहुत ही ईजी कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ये सारा काम, जितने भी इसके डिप्लॉयमेंट सर्वर है वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं। ये सारा काम यूरेका सर्वर खुद ही हैंडल कर लेता है। तो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कुछ ना कुछ नए फीचर के साथ ही आ रही हैं और वही सारे नए फीचर हमें लर्न करने हैं। ओके, लेट्स स्विचिंग अपॉन डेटाबेस। सो मेजरली बात करें अगर डेटाबेस की, तो डेटाबेस MySQL तो आप लोग कॉलेज लेवल पे पढ़ ही रहे हो और हम पढ़ेंगे मेजरली MongoDB। टू बी वेरी फ्रैंक, MySQL हम बहुत ही कम पढ़ने वाले हैं बिकॉज MySQL मार्केट में कोई पूछ नहीं रहा है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज आप अगर नए सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो 11th-12th के बच्चे को ही, अगर आप वो C++ या IP के हैं तो उन्हें 11th-12th से MySQL पढ़ाने लग जाते हैं और उतना ही MySQL रहता है एंड तक। MySQL में कुछ भी चेंज नहीं आता उसके बाद। नेक्स्ट है MongoDB। MongoDB नया है, बहुत ही कम कॉलेज सिलेबस में अभी ऐड हुआ है और MongoDB मार्केट में बहुत ही अच्छा बूम पे है। MongoDB और MySQL में सबसे ज्यादा फायदा, जो मेजर पॉइंट ये है कि MySQL में आप टेबल के साथ बंधे हुए हो। अगर आपको डेटाबेस डिजाइन करना है तो आप टेबल्स आपको डिजाइन करनी है, टेबल के अंदर कॉलम बनाने हैं। बट MongoDB में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जब मन करे तो आप एक रो में 10 डेटा डालो, आपका मन कर रहा है तो आप सिंगल रो में 1000 डेटा स्टोर कर दो, डजंट मैटर। MongoDB इन सब रिस्ट्रिक्शन से ऊपर है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा मार्केट में वाइडली यूज्ड है। इज इट क्लियर एवरीवन? ऑल द स्टैक्स व्हिच वी आर कवरिंग, लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। फ्रंट एंड हम पढ़ेंगे Angular 8 से, हम React नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज अभी करंट मार्केट जो हमारी इंडिया के अंदर, तो आपको React थोड़ा कम ही है, Angular बहुत प्रेफर में है। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है Angular और React में, थोड़ी बहुत लाइब्रेरीज का ही अंतर है। बहुत इजीली ग्रैब कर लोगे अगर आप Angular करके React करने जाओगे तो बहुत ही क्विकली ग्रैब कर लोगे, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट वन इज बैकएंड, कोर जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग, Zool, यूरेका, स्प्रिंग सिक्योरिटी और भी जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है स्प्रिंग के साथ। अगर मैं सिर्फ स्प्रिंग लिखता हूँ तो इस स्प्रिंग के अंदर भी बहुत कुछ है। नॉर्मल स्प्रिंग है, स्प्रिंग MVC है, स्प्रिंग बूट है एंड मैनी मोर। नेक्स्ट वन इज डेटाबेस, MySQL एंड MongoDB। ये हमारा टेक्नोलॉजी स्टैक है जितना हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ तक। ओके, सो लेट्स मूव अपॉन सम एक्स्ट्रा पर्क्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर। एक्स्ट्रा पर्क्स में क्या क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं, आपने फुल स्टैक तो पढ़ लिया, आपने एक वेबसाइट बना ली, आपने बहुत अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर ली या आपने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया, तो अब उस वेबसाइट को, उस सॉफ्टवेयर को आप कैसे लॉन्च करोगे, कैसे आगे प्रोसीड करोगे। हर किसी को अपना कोड तो प्रोवाइड करते नहीं रहोगे आप, हर किसी को अपना कोड दे दो या अपने डेस्कटॉप पे अगर आपको एप्लीकेशन दिखानी है तो हमें उसे लॉन्च भी करना है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स हैं जो आपको इस ट्रेनिंग के साथ मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने आ रहा हूँ। फर्स्ट वन इज डॉकर। आपने डॉकर के बारे में सुना होगा। डॉकर इज अ काइंड ऑफ अ वर्चुअल मशीन। पहले विंडोज थी। अगर मैं डॉकर की बात करूं, थोड़ा सा अपर पिक्चर आपको प्रोवाइड करूं, तो आप लोगों ने देखा होगा पहले हम लोग एक ही सिस्टम में 2 विंडोज इंस्टॉल करते थे।
कोई, अगर मैंने सी ड्राइव में विंडोज 7 रखी है तो मैं डी ड्राइव में विंडोज 10 रख ले रहा हूँ, और मैं 2 विंडोज एक साथ रन कर सकता हूँ अपने लैपटॉप पे इजीली। बट इसका एक ड्रॉबैक क्या था, अगर आप विंडोज 7 रन कर रहे हो और आपको विंडोज 10 रन करना है तो आपको पहले सिस्टम शट डाउन करना पड़ेगा, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट करते वक्त आपको चूज करना पड़ेगा कि आप 7 छोड़ के आप 10 चलाओगे। हमने इस प्रॉब्लम को रिमूव करा और हम लोग लेकर के आए वीएम। वीएम मींस एक वर्चुअल मशीन करके सॉफ्टवेयर आया, जिस सॉफ्टवेयर में क्या था, ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा और उस सॉफ्टवेयर को आप पर्टिकुलरली कुछ जीबी ऑफ रैम प्रोवाइड कर दो अपने सिस्टम की और डेटा स्टोरेज। अब आप क्या करो, आप अपनी एक्स्ट्रा विंडोज उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल कर लो। आपके सिस्टम पे विंडोज 7 पड़ी है, उसे उतना ही रहने दो। अब आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है वर्चुअल मशीन, उसके अंदर आप अपनी 2-3 विंडोज या 10 विंडोज जितनी आप इंस्टॉल कर पाओ उतनी कर लो। बट वर्चुअल मशीन का एक ड्रॉबैक है, वर्चुअल मशीन आपकी सिस्टम को स्लो करता जाता है, बिकॉज वर्चुअल मशीन को अगर आपने 10 जीबी रैम प्रोवाइड करी अपने सिस्टम में से, तो वो वर्चुअल मशीन वो 10 जीबी रैम उन विंडोज में बांट देगा। जब वो विंडोज चलना स्टार्ट होंगी तो वर्चुअल मशीन वापस से आपके सिस्टम की रैक को लैग करता चला जाएगा और धीरे धीरे करके आपके सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हमने वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट को भी ड्रॉप करा और नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए डॉकर। डॉकर क्या करता है, डॉकर के अंदर कंटेनर्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो जैसे ही आप डॉकर इंस्टॉल करोगे ना, अगर आपके डॉकर में इंस्टॉल होते वक्त 4 जीबी रैम लिए तो बस, आप डॉकर को कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं चाहिए। उस 4 जीबी ऑफ रैम पे ही डॉकर आप जितनी जीबी ऑफ सेट्स रन करना चाहो उतने जीबी ऑफ डेटा रन करा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ डॉकर इमेजेस। आप डॉकर के बारे में थोड़ा सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। डॉकर की भी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है अभी। नेक्स्ट वन इज जेंकिंस। जेंकिंस इज बेसिकली योर डिप्लॉयमेंट प्रोसीजर। जेंकिंस का यूज करके आप डिप्लॉयमेंट वगैरह कराते हो, जैसे आपने प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना है या जितने भी कंपनीज के अंदर काम होते हैं, ये सारा काम जेंकिंस हैंडल करता है। आपने अपने सॉफ्टवेयर की बिल्ड कैसे तैयार करनी है, कैसे जार फाइल बनानी है, कैसे वार फाइल बनानी है, एंड सो ऑन। द अदर वन इज अ जे यूनिट। अगर हम एक फुल स्टैक डेवलपर की बात करते हैं तो कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर वही है जो आपका फ्रंट एंड भी करे, आपका बैक एंड भी करे, आपका डेटाबेस भी करे और आपकी टेस्टिंग भी खुद ही कर ले। सो दैट्स व्हाट द जे यूनिट इज। जे यूनिट स्टैंड फॉर जावा यूनिट टेस्ट केसेस। तो आपको अपनी टेस्टिंग भी खुद ही लिखनी होती है अपने कोड की। अगर आपने कोई भी एक हेलो वर्ड का ही प्रोग्राम लिखा है तो उस हेलो वर्ड के प्रोग्राम के लिए भी आपको जावा यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो अपनी खुद की यूनिट टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी आपको। तो मैं आपको यूनिट टेस्टिंग भी करना सिखाऊंगा कोड की। नेक्स्ट वन इज क्लीन कोडिंग प्रैक्टिसेस। क्लीन कोडिंग प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। आपको कौन से डिजाइन पैटर्न यूज करने हैं, बहुत सारे डिजाइन पैटर्न होते हैं कंपनीज वगैरह में कोडिंग करने के लिए। अभी तक क्या है, आप एक ही पेज में सब कुछ कर देते हो, एक ही पेज में आपने कनेक्टिविटी भी कर दी, एक ही पेज में आपने फ्रंट एंड भी लिख रहे हैं, बैक एंड भी लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हटा करके हम लोग फ्रेमवर्क लाते हैं। बहुत सारे फ्रेमवर्क आते हैं, सिंगलटन पैटर्न, डबलटन पैटर्न, मल्टीपल पैटर्न और लेयर्ड आर्किटेक्चर, एमवीसी आर्किटेक्चर। ये सारे आर्किटेक्चर हम लोग इस क्लीन कोडिंग प्रैक्टिस के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज मेवन। मेवन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग यू ऑल द जार फाइल्स। आपको अपने प्रोजेक्ट में जितनी भी जार फाइल्स यूज करनी है ना, वो सारा काम मेवन का होता है। मेवन बेसिकली आपको एक प्रोजेक्ट का अपर स्ट्रक्चर रेडी करके दे देता है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट आप उसके ऊपर कोडिंग एंड ऑल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज गिटहब। गिटहब मैंने आपको इनिशियल में बताया था वर्जन कंट्रोलिंग के लिए होता है। द लास्ट वन इज रैबिट एमक्यू। रैबिट एमक्यू मार्केट की बहुत ही अच्छी करंट डिमांड है। रैबिट एमक्यू आपकी 2 एप्लीकेशंस के बीच मैसेजिंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड कराता है। किन्हीं भी 2 माइक्रो सर्विस या किन्हीं भी 2 सॉफ्ट, आपके लेवल पे बात करें तो किन्हीं भी 2 एप्लीकेशंस के बीच में आपको अगर मैसेजिंग करानी है तो उसका काम रैबिट एमक्यू का है। सो ये है हमारे एक्स्ट्रा पर्क्स, ये है हमारा सिलेबस। सो लेट्स स्विच अप ऑन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। जब हम इतनी सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे तो उसे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, बिकॉज जब कंपनी आपके सामने आएगी जॉब के प्रोवाइड करने के लिए, रिक्रूटमेंट जब भी आपका होगा, तो आप उस कंपनी को क्या दिखाओगे? आपने 4 साल में कुछ तो आपको प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है ना। फाइनल ईयर तक आपके हाथ में एक अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि कंपनी के लेवल का प्रोजेक्ट हो। तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो हम लोग इतने सारे स्किल सेट के बाद डेवलप करेंगे। सो ये बेसिकली मेजर अभी 5 प्रोजेक्ट सोचे हैं मैंने। फर्स्ट वन इज अ कार बुकिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सर्च इंजन, जिम एप्लीकेशन एंड शॉपिंग एप्लीकेशन। सो मैं आपको एक अपर लेयर पिक्चर डिजाइन करके बताता हूँ, जस्ट एक शो करता हूँ। अगर मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ और मैं इस कार बुकिंग एप्लीकेशन के बारे में सोचता हूँ, तो हम इस कार बुकिंग एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से एज्यूम करते हैं लाइक अ जूम कार एप्लीकेशन। सबने जूम कार एप्लीकेशन देखी होगी। जूम कार एप्लीकेशन कैसी एप्लीकेशन है? आपको कार्स प्रोवाइड करती है। जब आप लॉग इन करते हो तो आपको उसके फ्रंट पेज पे कार्स वगैरह के सिंबल सारे होते हैं। आप उन पर्टिकुलर कार को सेलेक्ट करते हो। उस कार को सेलेक्ट करने के बाद आप उसका प्राइस एंड ऑल देखते हो। आप अपनी जर्नी डेट, स्टार्टिंग डेट डालते हो। आप अपनी बुकिंग के बारे में बताते हो कहाँ से कहाँ तक जाना है
और आपके सामने प्राइस कैलकुलेट होकर के आ जाता है और आप इजीली बुक कर सकते हो, बुकिंग उसकी कंफर्म कर सकते हो. So that's what we are going to do, that kind of application. So अगर मैं कार बुकिंग एप्लीकेशन की बात करूं तो अगर मैं इसको फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि जो मेरा पहला पेज होगा, जब भी कोई यूजर मेरे पेज पे लॉगिन करता है तो मैं उस पेज पे उसे कुछ सेट ऑफ कार्स का कलेक्शन शो करूंगा. हर कार के बारे में कुछ ना कुछ फीचर्स डिस्क्राइब करके रखूंगा उस कार के ऊपर. उसके बाद मैं उस यूजर को उन इमेजेस के ऊपर क्लिक करने का ऑप्शन दूंगा. तो जैसे ही बंदा कोई भी कार को सेलेक्ट करता है तो उसके सामने एक नया पेज खुलेगा. उस पेज में वो अपनी बुकिंग की स्टार्टिंग डेट और एंड डेट डालेगा, उसे कब से कब तक के लिए वो कार चाहिए. उसके बाद जैसे ही वो डेट डाल देगा और अपनी डिस्टेंस डालेगा कि उसे कहाँ से कहाँ तक के लिए चाहिए, तो जैसे ही वो एंटर कर देगा अपनी डिस्टेंस तो उसके सामने उसकी डिस्टेंस का टोटल किलोमीटर और उसका प्राइस कैलकुलेट होकर के आ जाएगा. उसके बाद अगर वो बुकिंग करना चाहता है तो सामने बुक नाउ का ऑप्शन होगा. तो जैसे ही वो बुक नाउ पे क्लिक करता है तो मैं उसे पेमेंट गेटवे वाले पेज पे लेकर के जाऊंगा और उससे जो भी उसकी पार्शियल पेमेंट है वो पेमेंट करा लूंगा, बुकिंग पेमेंट. ये तो बात रही फ्रंट एंड की. अगर मैं इसे एज अ बैक एंड डेवलपर की बात करूं तो मैं इसे बैक एंड इसका इस पर्सपेक्टिव से देखता हूं कि मैं अगर कोई बंदा कार बुक करने आ रहा है तो मैं एक तो उसका एक एड्रेस स्टोर कर लूं, उसकी एक यूनिक आईडी अपने पास रखूं ताकि कल को कुछ भी फ्रॉड हो तो मैं उसे ट्रेस कर पाऊं. तो मैंने ये सोच लिया कि मैं उसका आधार कार्ड का नंबर स्टोर करा लूंगा. मैं ये चाहता हूं कि मैं उसकी हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन भी ट्रैक करके रखूं. अगर कोई बंदा मेरी कार बुकिंग एप्लीकेशन में फ्रिक्वेंट कमर है, अगर वो बार बार आना चाह रहा है, फ्रिक्वेंटली मेरी साइड से कार बुकिंग कर रहा है, तो मैं उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स प्रोवाइड करूं, उसे कुछ ऑफर डिस्काउंट एंड ऑल दूं. तो ये सारा काम. अगर मैं डेटाबेस के बंदे की बात करूं तो अगर कोई डेटाबेस डेवलपर है तो मैं डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से ये देखता हूं कि अगर कोई बंदा कार लेकर के जा रहा है तो अगर उसने कार बुक करी है, सपोज इफ ही और शी बुक अ कार फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो अगर कार कहीं पे बीच में स्टॉप कर रहा है, उसकी जीपीएस लोकेशन से मैं ट्रैक करके ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ कि वो बीच में कहाँ कहाँ पे रुकना पसंद कर रहा है. तो अगर वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली किसी पर्टिकुलर जगह पे रुक रहा है तो मैं वहां पे भी अपना एक स्टोर डाल सकता हूँ. इसका मतलब वहां पे बंदे आ रहे हैं तो मेरी कार बुकिंग एप्लीकेशन वहां से भी और आगे चल सकती है एंड सो ऑन. तो ये एक अपर पिक्चर है जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, जो मैं अपने व्यू से देख रहा हूँ एक कार बुकिंग एप्लीकेशन की. लेट्स टॉक अबाउट द जिम एप्लीकेशन. अगर मैं जिम एप्लीकेशन की बात करता हूं तो मेरा व्यू ऐसा है कि जब कोई फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से जब बंदा मेरे पेज पे एंटर करता है तो मैं उस बंदे के सामने पहले पेज पे उससे इंफॉर्मेशन, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लूं कि उस बंदे की हाइट कितनी है, उस बंदे का वेट कितना है और उस बंदे का गोल क्या है. या तो वो लीन होना चाह रहा है या फिर वो गेन होना चाह रहा है. तो अकॉर्डिंग टू देयर गोल, जब भी वो अपना गोल डिसाइड कर रहा है तो अगर कोई ही और शी विलिंग टू लूज देयर वेट तो उसे दूसरे पेज पे लेके चला जाऊं, अगर वो गेन करता है तो दूसरे पेज पे लेकर के चला जाऊं. उसके बाद उसके उसे उस पर्टिकुलर गोल के अकॉर्डिंग उसे मैं एक्सरसाइज सजेस्ट कर दूं. सपोज कोई बंदा चाहता है कि वो लूज होना चाह रहा है तो मैं उसे कार्डियो एंड ऑल की एक्सरसाइज शो कर दूंगा. ये तो रहा एक अपर पिक्चर. मैं इसमें थोड़ी और फंक्शनैलिटी ऐड करता हूँ. मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा मेरे साथ आ रहा है, मैं अपनी इस वेबसाइट में फ्रंट एंड पे ही उसे म्यूजिक प्ले करने का ऑप्शन दे दूं. मैं चाहता हूँ जब कोई बंदा मेरी मोबाइल एप्लीकेशन यूज करे तो मेरी एप्लीकेशन के थ्रू वो अपने गाना.com पे स्विच कर जाए, मेरी एप्लीकेशन के थ्रू वो एक्सरसाइज करता करता savan.com पे स्विच हो जाए. ऐसा ना हो कि वो पहले मेरी एप्लीकेशन पे आके एक्सरसाइज देखे, फिर मेरी एप्लीकेशन बंद करके कोई दूसरा सॉन्ग प्ले करने जा रहा है या कोई दूसरी वीडियो देखने जा रहा है. तो मैं उसे अपनी एप्लीकेशन से ही बाकी सारे पाथ भी प्रोवाइड करूँ. नेक्स्ट मैं ये देखता हूँ कि जब मैं उसे ये पाथ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो क्यों ना उसे थोड़ा चार्ज करा जाए. तो मैं एप्लीकेशन में लॉगिन और फ्री वाला सिनेरियो रखता हूँ. अगर कोई बंदा फ्रीली यूज कर रहा है तो उसको ये सारी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी कि वो मेरी ऐप के थ्रू ही सॉन्ग प्ले कर ले और मेरी ऐप के थ्रू ही गाने सुन ले. तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसे मैंने लॉगिन पेज दे दिया है और उससे कुछ अमाउंट ऑफ पैसे ले रहा हूँ कि आप मेरी एप्लीकेशन पे सब्सक्रिप्शन खरीदिए. अगर आप मेरे सब्सक्राइब बंदे हो तो फिर मैं आपको इतने सारे एक्स्ट्रा पर्क्स प्रोवाइड करूंगा. अगर कोई बंदा सब्सक्राइब नहीं है तो उसके लिए कम पर्क्स प्रोवाइड करूंगा. ये तो है मेरी एक अपर लेयर ऑफ जिम एप्लीकेशन जो कि मेरे माइंडसेट से मैं सोच के चल रहा हूँ. हर बंदा कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव सोचेगा और हर बंदा कुछ ना कुछ नया ही क्रिएट करके देगा. जितने भी बैच मैंने लेटर ऑन पढ़ाए हैं, हर बंदे ने एक अलग ही एप्लीकेशन तैयार करी है. सबकी अच्छी है, सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम. ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम वो छोटा प्रोजेक्ट नहीं है जो आप लोग 11th-12th में बना के दे देते हो स्कूल में. ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम उस बिहाफ पे है. इस सब बेसिकली इसमें 3 फ्रेमवर्क होंगे. एक लॉगिन होगा यूजर के लिए, मतलब एम्प्लॉय के लिए किसी कंपनी में. एक लॉगिन होगा उस मैनेजर के लिए जिसके अंडर में एम्प्लॉयज होंगे और एक होगा कंपनी का मेन हेड, एक एडमिन बंदे के लिए लॉगिन होंगे.
तो जो एडमिन बंदा होगा, जो मेजर मेन बंदा होगा, वो क्या कर पाएगा, वो सारे इंप्लॉइज को ऐड कर पाएगा और उन्हीं इंप्लॉय में से किसी को मैनेजर बना पाएगा। नेक्स्ट लॉगिन बात करते हैं मैनेजर की। अगर मैं किसी मैनेजर एप्लीकेशन की बात करूं, तो मैनेजर जब भी लॉगिन करेगा अपने अकाउंट से, तो वो बंदा क्या करेगा, अपने अंडर में जितने भी उसके एम्प्लॉयज हैं उन सबको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट या टास्क असाइन कर पाएगा। और जब वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जाके अपने आईडी से लॉगिन करेगा, तो उस बंदे को उसका टास्क दिख रहा होगा। अब जब वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा ना, तो उसके सामने अटेंडेंस शीट होगी। वो शीट पे हर रोज अपडेट कर रहा होगा कि हाँ मैंने इतनी देर इतने पे काम करा, इतनी देर इतने पे। तो उसका प्रॉपर डैशबोर्ड उस मैनेजमेंट के सामने आ रहा होगा और उसी बिहाफ पे उसकी सैलरी इंक्रीमेंट एंड ऑल सब कुछ सेट होगा। ये है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरव्यू। नेक्स्ट वन इज द शॉपिंग एप्लीकेशन। शॉपिंग एप्लीकेशन आपके लिए डेवलप करना बहुत ईजी है, बिकॉज बहुत सारी शॉपिंग एप्लीकेशन आपके सामने है। आप रोज ही शॉपिंग एप्लीकेशन देख रहे हो, फ्रंट एंड देख रहे, आपने फ्लिपकार्ट देखी है, आपने अमेजोन देखी है, आपने ईबे देखी है, आपने और भी बहुत सारी शॉपिंग एप्लीकेशन है। अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ जाओगे तो शायद वो थोड़ा मैसी है, आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसे टिपिकल हो जाता है बनाने के लिए। मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ, एक वेबसाइट है बेवकूफ.com। आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन देखो बेवकूफ.com की। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शोबर डिजाइंड है। अगर आप कुछ ऐसा क्रिएटिव बना पाते हो तो आपकी शॉपिंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे शॉपिंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बनाते हैं फाइनल ईयर में, बट इसका ड्रॉबैक ये है, वो लोग डिक्टो इन सबको कॉपी कर देते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन। फ्लिपकार्ट और अमेजोन को कॉपी करना बहुत ही सिंपल है, बट वो थोड़ा हेक्टिक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। तो हर किसी के दिमाग में पिक्चर है, सबको लगता है तो कॉपी है फ्रंट एंड इसका। अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो तो आप 4-5 साइट का सजेशन लो और उसके बाद क्रिएट करो। ये जो लास्ट है सर्च इंजन, सर्च इंजन इज काइंड ऑफ अ कोरा.com। आप लोगों ने देखा होगा कोरा.com। आप कुछ भी क्वेश्चन की क्वेरी सर्च करो, आपको कोरा.com पे उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये सर्च इंजन को जिस तरीके का सर्च इंजन डेवलप करने का हम लोगों ने सोचा है। तो ये मेरे 5 प्रोजेक्ट हैं। इन सारे प्रोजेक्ट पे ही हम लोग, अब अगर थोड़ा सी अपर लेयर की डिस्कशन करें, तो अगर मैं कार बुकिंग एप्लीकेशन की बात करूं, या फिर मैं अगर बात करता हूं शॉपिंग एप्लीकेशन और जिम एप्लीकेशन की, तो इन दोनों प्रोजेक्ट में ना, जो भी फ्रंट एंड, आपको फ्रंट एंड का काम बहुत मेजर प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रंट एंड बहुत ज्यादा है इधर। अगर मैं कार बुकिंग एप्लीकेशन की बात करूं तो इसमें बैक एंड का बहुत तगड़ा काम है, फ्रंट एंड का भी काम है, सब प्रोजेक्ट में ही है, बट जो ज्यादा कैटेगराइज्ड है, जैसे किसी को लगता है नहीं मेरे को बैक एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखना है, मैं फ्रंट एंड और डेटाबेस करूंगा बट मेरे को बैक एंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है, तो वो बंदा कार बुकिंग एप्लीकेशन के साथ जा सकता है। अगर किसी बंदे को लगता है नहीं मैं तीनों में बहुत ही अच्छा काम करना चाहता हूं, तो उसके लिए है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर किसी बंदे को लगता है कि मेरे को डेटाबेस और फ्रंट एंड बहुत अच्छा रखना है, तो उसके लिए ओपन है शॉपिंग एप्लीकेशन और सर्च इंजन। जिम एप्लीकेशन फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ। डेटाबेस का थोड़ा कम काम है, बट हाँ काम तो है ही उसके अंदर भी। लेट्स मूव बैक। हम बहुत ही क्लियर पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने फ्रंट एंड पढ़ना स्टार्ट करा, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, हर बंदा अपने अपने हिसाब से प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकता है। जब हम पूरे स्किल सेट पढ़ के खत्म करते हैं ना, फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस, तो एट द एंड ऑफ द डे इतनी सारी स्किल्स को, इतनी सारी टेक्नोलॉजी को याद रख पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब आप पढ़ रहे हो उसी के साथ साथ अगर आप उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करो ना, तो वो सबसे बेस्ट चीज है। इसीलिए जैसे जैसे हमारा एक एक टॉपिक कवर होता जाएगा, हम उसके साथ साथ ही अपने प्रोजेक्ट का पोर्शन भी कंप्लीट करते चलेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रेडी हो दिखाने के लिए। तो मान लो जैसे हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया, तो फ्रंट एंड के साथ ही जैसे HTML CSS स्टार्ट हुआ, तो आप जो भी छोटे मोटे फॉर्म है, आपको लग रहा है कि मेरे को एप्लीकेशन में फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई बंदा लॉग इन करेगा मेरे पेज पे, तो उसे यूजर नेम पासवर्ड लेना पड़ेगा, कोई साइन अप करेगा तो वो सारा काम करना पड़ेगा। तो ये सारे फॉर्म आप डे 1 से ही अपने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। आपने HTML की थोड़ी चीजें पढ़ी, आप HTML के काम पे लग गए। आपने CSS पढ़ा, आप CSS इंप्लीमेंट करने लग गए। आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा, आप बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट करने लग गए। ऐसे करते करते एट द एंड ऑफ एंगुलर 8 आपके सामने एक अच्छा खासा फ्रंट एंड तैयार हो जाएगा। सेम विद द बैक एंड। जैसे जैसे फ्रेमवर्क आगे बढ़ता जाएगा, आपको लगता जाएगा कि हाँ ये अब इतनी चीज से मेरी अचीवमेंट टास्क, तो आप उसके थ्रू डेवलप करते चलोगे। सो टोटली 100% हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है ये। टोटल हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे डिस्कशन करेंगे इस पूरी ट्रेनिंग में, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल, ताकि आप एक अच्छे खासे डेवलपर बन पाओ। थ्योरी याद करना बहुत ईजी है, आज नहीं तो कल आप वो 4-5 रटे रटाए इंटरव्यू क्वेश्चंस क्लियर कर लोगे। बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन किसी एमएनसी में जाने की है, आप सोच रहे हो कि मैं हैकर अर्थ, हैकर रैंक, या जितने भी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, इनके क्वेरीज सॉल्व कर लूं, इनके पजल्स जो देते हैं अपने डेटा इंटरव्यू क्वेश्चंस में, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको हैंड्स ऑन नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शायद वही मेजर रोल प्ले करती है। वहां थ्योरी कभी भी काम नहीं आती, बिकॉज थ्योरी तो आप कॉलेज लेवल पे पढ़ ही रहे हो। सो ये सारा वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सेट है जो कि हम लोग कवर करने जा रहे हैं। So that's it. That's my contact number. That's my contact details. So
if you have any queries, so stage is yours. You can please ask.